Yeah, so good evening, all of you. I am Shagun, a final year student at JP University of Information Technology and the former intern at DRDO, Delhi, wherein I worked on the segment of an ongoing national level security project, which includes the work on reinforcement learning. And also, I'm experienced to give, हम नहीं कहते कथी के ज्वाइन केला तूरे excuse me, Rahul. Yeah, so also I am experienced in like giving various tech interviews, so I can help you in that way also. So basically, we all are here for the 7 days workshop on data structures and advanced algorithms. Okay, so can I just know that of which year you all are belonging to, like in which year you all are studying college? I'm third. Second. First year. Second. Okay, so Second. First. BTech class cycle. 12 fourth year okay. Third year. So basically, what I want to say that the people who are starting from first year, like, let us be comfortable first. We will talk in both mix English and Hindi. Okay. So I was saying कि जो लोग फर्स्ट ईयर से ही अभी शुरू कर रहे हैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़ना एंड एल्गोरिदम सो वेरी नाइस ऑफ देम because many of us, like many of my friends, have just started in the last of third year or so they get comparatively less time as much as you get. Okay, so basically आप लोगों ने सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में, तभी आप लोग यहाँ पर हैं, है ना? सो आपने क्या मतलब क्या क्या पढ़ा है अभी, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कोई बेसिकली बताए, मतलब बिल्कुल हिंदी में क्या आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली? Arrangement of data so that we can transfer or we can do store data efficiently. Okay, so like store data efficiently. Okay, arrangement of Store and use. in an organized manner uh, we write a program manner. Steps to write a code. so that is organizing a data in such a way that we can access them efficiently. Yes. So basically, data structure is like a container in which we are like feeding our data so that we can use. हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको यूज कर सके उस डेटा को एफिशिएंटली. ओके, सो दिस इज बेसिक लाइक डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना? तो ऑल्सो लाइक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वी ऑल विल सी इन दीज 7 days. सो मतलब कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से तुम लोगों ने सुने हुए हैं? ऐसे बहुत लोगों ने Arrays, Array. linked list, Array stack, है, linked list Tree है, queue, graph है. tree, graphs. Trees. Graph. So what according to you is the simplest data structure? Simplest. Arrays. Array. Array. Linked list. Stack. So basically simplest means like arrays is the simplest which we study first. मतलब हम सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं, उसकी applications और सब में आती हैं, है ना? So like you all like are familiar with C++ language or any other languages also? Ma'am, C++. Java, C++, C. Java. C++. Okay. Ma'am, C and C++. C++ Java and Python. Okay. So basically, I do competitive programming and I am like familiar with all of them, but I am fluent in C++. So I can just tell about C++ only in these 7 days of workshops. Okay. So also like did do like all of you have started like coding on various platform like Lead Code and HackerRank and all of that? किसी ने शुरू किया है? Code shape. Ma'am, Yeah. HackerRank and CodeChef. hacker Okay. and Okay. So
अभी अभी जिसका बहुत पास में इंटरव्यूज हों या फिर ऐसे टेक इंटरव्यूज शेड्यूल्ड हों, ऐसे कोई है यहाँ पर, कोई ऐसे बंदा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कितने डेज में है आपका? Ma'am, I don't know Hindi, ma'am. Actually, my interview is with Wipro, but it's not scheduled yet. ओके ओके ओके, फाइन. सो या सो कल बेसिकली कल मेरा है मैम. नगैरो. कौन किसके साथ है, कौन सी एमएनसी है, कौन सी कंपनी है? मैम नगैरो. अच्छा, नगारो. ओके. So basically, we all know that in every tech interview, DSA का question पूछेंगे ही, be it very like basic to advanced. Okay. So like I would like to share an experience. I have given various tech interviews, various like 5 to 6 I have given in last 2 months only. So I just want to share an experience. Like it was a very big company and it was providing very nice package. Okay. So the tech interview, जब मेरा tech interview हुआ, the one question they asked from me, the only one question they asked from me was about the binary search only. A very simple question of binary search. Okay. So it's not like कि आप लोगों को हमेशा ऐसे, सब लोग बोलते हैं कि बहुत हमेशा ऐसे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर many of us are scared of tech interviews कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे ऐसे, और नहीं आया तो उस टाइम पे लॉजिक है ना. सो हमको सबसे पहले अपने बेसिक्स और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए. बाइनरी सर्च केवल 2 घंटे का टॉपिक है केवल, और उस पे मतलब पूरा एक टेक इंटरव्यू मेरा बेस्ड था. ओके. सो आई थिंक कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेगा, और जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे बिट मैनिपुलेशन हो गया. ओके. एंड लाइक दिस बाइनरी सर्च हो गया, मैनी ऑफ अस टेंड्स टू लाइक इग्नोर दीज. हमें बस ये बड़ी बड़ी चीजें दिखती है, ट्रीज कर लेंगे, ग्राफ्स कर लेंगे, है ना? राइट और नॉट? Yes, ma'am. है ना? डीपी कर लेंगे, Yes, ma'am. डायनेमिक Yes, ma'am. प्रोग्रामिंग, है ना? सो बेसिकली Ma'am. बस यही है. जो ये बहुत ऐसे वाले टॉपिक्स होते हैं, इंटरव्यूअर्स को भी पता होता है, बहुत सारे बच्चे, बट ये नहीं मैं कहूंगी कि एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग. ओके. बट हमें सबसे पहले ऐसे नहीं कूद जाना चाहिए कि हम डीपी ही पढ़ेंगे, ग्राफ्स ही पढ़ेंगे. ओके. सो वील जस्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ऑल्सो एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है, यू मस्ट नो दिस कि इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, है ना? वी कैन नॉट कवर डीपली लाइक एवरी टॉपिक डीपली इन जस्ट 7 days, है ना? तो वील जस्ट गो ऑन द जिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक कि क्या होती है वो तब, लाइक एरेज क्या होता है, उसमें मेन चीजें क्या होती हैं, है ना? कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो वील जस्ट go with that. Also, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू इन डीएसए पढ़ने के Arrays. लिए? Array. ओके. एंड एल्गोरिदम्स का फर्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? List Searching. sorting. क्या Ma'am, चीज? it should be sorting algorithm. Searching वाली. Sorting. Sorting and searching algorithms. ma'am. एंड बिफोर दैट ऑल्सो वी शुड नो, बिफोर लाइक एल्गोरिदम्स का मेन पार्ट होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हम एल्गोरिदम्स क्यों पढ़ते हैं? सर्चिंग, सॉर्टिंग, मतलब हम नॉर्मली भी तो सॉर्ट कर सकते हैं किसी चीज को, है ना? हम मतलब बहुत सारे तरीके, 4 तरीके के सॉर्ट क्यों पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके के सॉर्ट क्यों पढ़ते हैं ना? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत बहुत मेजर टॉपिक है इन एल्गोरिदम्स. ओके. सो बट वील स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना? सो एरेज के बारे में मतलब किसको जो भी पता है आप इंटरेक्ट करो, मुझे बताओ जितना भी जानते हो. पूरा एलियस का क्या जरूरत था मैंने? क्या चीज? कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? Arrays is a collection of same data type.
homogeneous element with continuous memory location. It's not that. Okay. It's limited. Accessing of data from the array is very complicated than compared to list. Mm-hmm. Data is stored in means some of the features are that it is based on static location memory based. Second, it stores a contiguous data. It has same data type. 3 points are there. Ma'am, So, array is a space of fixed Ma'am, point. bolo. a array is a data structure that collect a similar type of element as well as some data types too. ओके सो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है हमें हम एरेज क्यों यूज करते हैं इसका एडवांटेज क्यों है हमें Simple to implement. ओके और Indexing is Add easy. those element. Ma'am, so that we do not need to define a lots of variables of same data types. मैम अगर एक प्रोग्राम में 10 या 15 वेरिएबल्स एक ही टाइप की बनाने हैं तो हम लोग एरे यूज कर सकते हैं इतने सारे वेरिएबल्स को स्किप करके. Accessing the elements are easy. yes this is the main Ma'am, point random access we can access data by in Mhm. order of one time by using array. yes so the main advantage of array is random access means if we have an array with us so हम उसके किसी भी एलिमेंट पर रैंडम मतलब कब सीधा पहुंच सकते हैं उसको ट्रेवर्स करके नहीं जाना पड़ेगा हमको लिंक लिस्ट में क्या होता है इफ वी नो द लिंक लिस्ट दैट इज बेसिकली वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से तो अगर मुझे थर्ड एलिमेंट पर जाना है तो मुझे पहले के दो एलिमेंट को ट्रेवर्स करके ही जाना पड़ेगा थर्ड पर है ना बट इन एरे व्हाट कैन आई डू इज हम रैंडम मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को सो दिस इज द मेन एडवांटेज ओके एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं एरे के व्हाई शुड वी नॉट यूज द एरेज मैम मेमोरी फिक्स करना पड़ता है. Elements are very tough. Arrays cannot changeable. Fixed length of arrays. Only fixed Okay. data type. Static size. सो बेसिकली और उसकी जगह हम और क्या चीजें यूज कर सकते हैं क्या किसी ने Vector. एरे लिस्ट वेक्टर और Ma'am, linked list, vectors. STL यूज करते हैं. हाँ STL के बारे में सबने सुना हुआ है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. मैं बताती हूँ सो STL इज बेसिकली ये C++ में होती है फर्स्ट ऑफ ऑल C++ में STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी अब अगर मुझे कोई मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल मुझे कोई स्टैक बनाना है ठीक है तो हमें क्या होता है कि अगर मैं STL यूज नहीं कर रही हूँ इन बेसिक प्रोग्रामिंग व्हाट डू आई डू हम स्टैक को खुद बनाते हैं स्टैक का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसको यूज करते हैं है ना बट STL के थ्रू हम जितने भी STL इज बेसिकली हम कब यूज करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या फिर हम अपने कोड को एफिशिएंटली लिखना चाहते हैं मतलब लाइक अगर मैं स्टैक का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के लिखूंगी तो मेरा कोड बेसिकली हम स्ट्रक्चर तब बना सकते हैं अगर मुझे कोई अलग तरीके का मतलब मुझे स्टैक प्रॉपर स्टैक नहीं चाहिए मुझे उसमें कुछ डिफरेंट चाहिए ओके सो बेसिकली हम STL कब यूज करेंगे STL उसमें यूज होता है जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब अगर मैं STL यूज कर रही हूँ तो आई कैन यूज स्टैक का एक प्रॉपर खुद का एक फंक्शन होता है ना तो ऐसे ही हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जैसे हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है एरे में से है ना तो मैक्सिमम एलिमेंट निकालने का मैं नॉर्मल कोड भी कर सकती हूँ उसको C++ में बट STL यूज करके मैं मैक्स फंक्शन यूज कर लूंगी सीधा तो उससे मेरा कोड एफिशिएंट हो जाता है ना समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ Yes, ma'am. समझ आ रहा है. Yes, ma'am. ओके सो Ma'am, little bit confusing. लाइक बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें ऐसा है जैसे मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबको पता है ना होती हैं मैं ये नहीं पूछ रही कौन सी होती हैं बस इतना पता है ना सॉर्ट करने के लिए Yes, ma'am. हाँ तो अब मैं उस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को पूरा कोड ना करके बस एक सॉर्ट फंक्शन यूज कर लूं बस SORT सॉर्ट फंक्शन के फंक्शन ब्रेसेस लगा के और अंदर मैंने एक एरे पास कर दी और वो खुद सॉर्ट होके मेरे पास आउटपुट आ रही है
है ना? डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मोहम्मद? Ma'am, is this program in Hindi or English, ma'am? I don't know Hindi. Okay. So I'll just talk in English then. I'm not India, madam. Sorry for that. Okay. No problem. So basically what I am saying is that we directly use the sort function and not write the whole sorting algorithm for that. Okay, we should know every sorting algorithm or searching algorithm, but when we have the bigger problems, so hum ye jo sorting the thing that we need sorting as a part of that question. Okay, हमारे पास कभी भी ऐसे नहीं होता कि interviewer is asking कि तुम मुझे sort का पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाओ. He says कि you have this problem, you have this question, ठीक है? उसके अंदर if I need sorting then I use sort function. So for that we use the predefined, जो पहले से defined है, वो functions that we use through STL libraries, standard template libraries. Okay, this was the basic thing about STL. So STL, in STL there is a thing called vector. Okay, so vector is a type of array, but हम उसको उसमें उसका size भी, अब जो disadvantage था array में वो क्या था, कि that we have fixed space, we have shortage of space, we cannot just we cannot increase its space by our will. Okay, so हम उसके लिए we use vectors. So ये वहां से आया था point STL का basically कि हम, wait a second, that we use vectors in through STL. अगर हमें array की जगह मतलब कोई ज्यादा हमें उसका साइज बढ़ाना पड़े बीच में या कुछ ऐसे, ठीक है? So let me just share my screen. हम आज अभी array पढ़ेंगे, बहुत basic array पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है? Because today is introductory class. हमने बस ये देखा है कि हम नेक्स्ट 7 डेज में क्या करेंगे, हम डेटा स्ट्रक्चर्स को ऊपर से टच अपॉन करेंगे, सारा जिस देखेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. ओके, हेलो, Yes, ma'am. is my screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so basically arrays, what हम arrays के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें जो ज्यादातर लोगों को पता है, but the people who are from first year they must have few doubts about it. So मैं फिर भी एक मतलब बेसिक बता देती हूँ arrays हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, ठीक है? So जो भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारा वो एक कंटेनर होता है. We have discussed this right now. Okay, so arrays हम बेसिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ बॉक्सेस, जो भी हम एलिमेंट लिखना चाहते हैं इसमें, ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yeah, so let me just write few things. Okay, so here what I am saying is जब भी हम कोई भी एरे बना रहे होते हैं हमको उसका साइज पहले से पता होना चाहिए. लाइक अगर मैं यहाँ पर मैंने कितने साइज की एरे बनाई है, 8 साइज की एरे बनाई है, तो मुझे इसका साइज, अगर मैं इसको डिक्लेयर करूंगी तो मुझे इसका साइज पता होना बहुत जरूरी है एरे को यूज करने से पहले, एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज करने से पहले. ओके, ठीक है? तो एरे का साइज मुझे पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं ये अभी मैंने कौन सी एरे बनाई है, इंटीजर एरे है ये, है ना? हम इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं इसमें. तो इंटीजर बेसिकली किसी भी नॉर्मल कंपाइलर में कितने बाइट्स लेता है, किसी को पता है? 4. हाँ, 4 बाइट्स रहता है. 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है? तो अब हम इसकी एड्रेसिंग कैसे करेंगे? लाइक फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो हमारी रैम है उसमें हमारी ये एरे स्टोर हुई है, इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है ये वाला पोर्शन, ये हमारा 100 पे एलोकेट हुआ है, कंप्यूटर ने खुद जो एलोकेट किया है, ठीक है? तो जो ये वाला होगा वो कौन से एड्रेस पे होगा, कोई बताएगा मुझे? 101. ये 104. 104. या 104 होगा. Continue in English.
Okay, okay. Sorry. So like the next address will be 100 plus the data type we are using. Data type, what data type we are using? We are using integer data type. So it takes 4 byte. So the next address will be 104, next will be 108, and so on. Okay. So now what I am saying is कि अगर if we want to just there are three things here. Okay, first is insert, second is delete, and third is like search. If अगर कोई प्रॉब्लम हो इन माय हैंडराइटिंग तो प्लीज बोल दीजिएगा पहले ही. ओके, ठीक है. Yes, ma'am. सही है. ठीक है ma'am. ओके, सो बेसिकली इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, सो हम कहाँ कहाँ पर इंसर्ट करते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पर इसमें? I'm at Where- starting, at end, and at specific position. So if there can be three positions, first we can like insert in the starting or in the end or in the middle, anywhere in the middle, like in this range. Okay, so time complexity basically क्या होता है? Complexity मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? Normal English में complexity, what is complexity? Difficulty. ओके, और हमें किसी एल्गोरिदम को या फिर इन राइटिंग अ कोड व्हाट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज डू वी फेस? Time and space. Time and space. Time and space. Complexity, space complexity. Okay, so like we do face two types of complexities, time complexity and space complexity. Okay, but the main like in today's world, like which complexity do you think is most important to handle, like time complexity or Time. okay, Time why complexity. why not space? Space also, but Because we want. Time is more Both are important equally nowadays. important. Ma'am, because memory is not that much costly as it was earlier. Yeah, so basically space is something we can create on our own, like we use a very cloud like these cloud based AWS and all of these Google Drive पे हमें इतना free में space मिलता है 15 GB or more than that. So basically we can create space on our own, but we cannot create time. Okay, so the which of them is more important to handle? That is time complexity. So हम अगर if we want to just insert at these three positions, starting, end, or in the middle, so the main advantage of array was random access. Okay, so we can like directly go to the first index and the last index and insert the element we want to insert. But अगर हमें mid में insert करना है, if we want to insert in the middle, तो तब मुझे वहां तक ट्रेवर्स भी नहीं करना बेसिकली मुझे वहां पे, बट जो द एलिमेंट विच इज ऑलरेडी देयर मुझे उसको पहले हटाना पड़ेगा या फिर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ज्यादा होती है. कोई सेम इज इन डिलीट. इफ यू वांट टू लाइक डिलीट एलिमेंट from the starting or from the end, then we can do it in big O of 1 time. Big O of 1 means we'll study it in time complexity part. So big O of 1 means constant time. हम बिल्कुल linear time ले रहे हैं, constant time ले रहे हैं हम, ठीक है? We are taking only constant time, that we are going exactly at that space and deleting that element. Okay, search we'll like do afterwards during searching and sorting. Okay, now let me just clear this. अब अगर if we want to if I want to use an array in a program, so हम कितने तरीके से, in how many ways can I declare or initialize an array? Can someone tell me? First is int, then a, then square bracket, Dynamically and non-dynamically. Okay, means runtime and compile time. Basically, if we can initialize by for brackets, and we can also initialize by for loop.
What? reading the, you can initialize by brackets, ma'am. Array. Okay. Sorry. So basically there are two types, basically runtime and compile time. Okay, so if I want कि मेरे को एक फिक्स्ड एरे है, मेरे पास एक फिक्स्ड एरे है, मुझे पता है कि देयर इज अ क्वेश्चन जो मुझे इंटरव्यूअर ने दिया है या मुझे कहीं भी वो प्रॉब्लम आई है, तो मुझे एक एरे चाहिए, बट उसका साइज मुझे ये पता है कि आई विल नॉट एक्सीड द साइज ऑफ 5, मींस इफ आई एम यूजिंग एन एरे ऑफ साइज 5 कि इससे ज्यादा मुझे साइज नहीं चाहिए, तो मैं और मुझे अपनी आई नो दी व्हाट एरे आई विल बी यूजिंग, सो आई विल इनिशियलाइज इट दिस वे. समझ आया? मतलब इफ आई हैव द एरे एंड आई नो दैट आई वोंट बी चेंजिंग इट ड्यूरिंग माय ड्यूरिंग माय प्रोग्राम, और ये मुझे किसी यूजर से इनपुट नहीं चाहिए, मतलब ये मुझे किसी यूजर से इनपुट नहीं लेनी पड़ेगी एरे, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कि मैंने स्टैटिकली इसको डिक्लेयर करा है, कि मुझे पहले से ही पता है व्हाट इज माय एरे एग्जैक्टली. ओके, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. बट अगर मुझे पता है, देखो ये चीज हमें पक्का पता होना चाहिए प्रोग्राम लिखने से पहले कि मेरी एरे किस साइज की है. अगर मान लेते हैं कि मुझे पता नहीं है किस साइज की है, तो मैं एक ऐसा साइज डिक्लेयर कर दूंगी एरे बनाते हुए, 1000 डिक्लेयर कर दूंगी कि मुझे ये पता है कि इससे तो छोटी ही मुझे नीड होगी, दैट आई नीड एरे ऑफ साइज स्मॉलर देन दिस इन होल ऑफ माय प्रोग्राम. ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट मेरे को अपनी एरे नहीं पता है कि व्हाट इज माय एरे, तो मुझे किसी से इनपुट लेना पड़ेगा. उसको यूजर इनपुट लेते हैं ना हम किसी प्रोग्राम में, Yes, ma'am. है ना? तो Yes, यूजर, ma'am. सो यूजर इनपुट लेने के लिए क्या, व्हाट विल बी माय स्टेप्स अकॉर्डिंग टू यू? मैंने साइज तो डिक्लेयर कर दिया 1000, अब मुझे नहीं पता यूजर, अगर अगर यूजर को 2000 की एरे इनपुट करानी होगी तो वो एरर देगा या फिर बढ़ा लेगी अपनी साइज एरे? Ma'am, Error error. देगा, ma'am. Error. Error Error. देगा, ma'am. It's give error, ma'am. ये वार्निंग ओके, देगा. और अगर वो केवल 10 एलिमेंट्स डाले तो कोई प्रॉब्लम होगी उसमें? Wastage. No No problem. problem. No, No ma'am. problem. Error नहीं देगा, Wastage लेकिन of memory, ma'am. हाँ, बिल्कुल सही बोला है कि हम कोई एरर तो नहीं देगा, बट एक्चुअल में हम वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ स्पेस, है ना? सो बेसिकली स्पेस का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एरे इज लाइक इसका यही डिसएडवांटेज है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज एरेज दैट मच. इफ वी नो व्हाट एसटीएल इज, सो वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज वेक्टर फॉर दिस. ठीक है, तो कभी पढ़ेंगे. एसटीएल इज बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक एंड नॉट इन दिस डेटा स्ट्रक्चर्स, वो बिल्कुल अलग है. एसटीएल इज बेसिकली यूज फॉर लाइक efficacy, to increase the efficacy of your code, or if you want to just have a like clean code if you want to write. Okay, so if I want to uh, initialize an array, declare और initialize में कोई किसी को difference पता है? Yes, ma'am. बताओ. We put elements inside the array during initialization, but not in declaration. Okay, so Declaration, we give data type. Like int array 5, that is my Ma'am, by Ma'am, hearing, initialization, and then the next part is declaration. If we insert the value in the Ma'am, array. in declaration we specify money that is required to for the variable to be which we are creating. In initialization we give that elements, that is means int a, in which in this we are giving a memory of 4 bytes, but if int a is equal to Okay. 5, we are putting value also. ओके, सो डिक्लेरेशन का मतलब नॉर्मल इंग्लिश में हमें पता है डिक्लेयर करना, किसी चीज को बताना कि दैट वी विल बी यूजिंग दिस इन लाइक अहेड ऑफ इन दिस प्रोग्राम, मतलब हमें आगे जाके इस प्रोग्राम में इस चीज का इस्तेमाल करना है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, है ना? बट व्हेन वी नीड टू यूज दैट, जब हमें वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उस चीज को यूज करना है, उस जो वैल्यूज हम उसको देंगे, जो वैल्यूज हम उसमें फीड करेंगे, द डेटा वी गिव
in that data structure, उस चीज को हम कहते हैं initialization. We are doing initialization. ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर देखो आप, जो जहां पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक तो पहले डेटा टाइप भी आएगा int. Before this there will be a data type int array 5. So this portion is called declaration, and this the values I am feeding into our data structure is called initialization. तो मैं एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी कर रही हूँ और इनिशियलाइज भी कर रही हूँ. समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट बहुत बार होता है मुझे अपनी एरे नहीं पता, मुझे यूजर से इनपुट कराना है. ठीक है, मुझे यूजर से इनपुट कराना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम कैसे इनपुट लेते हैं C++ में? Ma'am, using for loop from 0 index to n-1 and then cn ai. What is n? N here. N क्या है यहाँ The पे? size of array. First, we need to take the size of array. Then we. I can use n. I can take n by size of array divided by size of data type. Then I'll use the for loop. We can directly take input of the size. पहले हम यूजर से ही इनपुट लेंगे कि तुम्हें किस साइज की एरे चाहिए. भाई हमारे पास मान लेते हैं हमने कोई एरे बनाई ही नहीं है, हमने उसको बोल दिया है कि तुम ही साइज बता दो. ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बेसिकली एक इंटीजर टाइप लेंगे. इंटीजर क्या है यहाँ पर? साइज. तो मैं एक s नाम का वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पर. s क्या है यहाँ पर? हम इससे साइज ऑफ एरे डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इसके बाद अब मुझे ये साइज मैंने डिक्लेयर करा है, अब इसको मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि उसको कौन सा साइज चाहिए. तो मैं C++ में कौन सा फंक्शन यूज करती हूँ इसके लिए? cin. पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसमें डाउट है मेरे को. If it is a string type, any type of data, we can use cin, ma'am. Just Like we will move to character type array, that is string, so we'll just study that in that section of the part. ठीक है, for each for a different type of data we can use like float, like if we are using float or integer or character, we can use cin. There's no there's no boundaries to कि इसको हम तभी यूज कर सकते हैं. नहीं Ma'am, even for character array, cin works fine. in C they say %d %f, ma'am. That's I am not able to understand your question. Percentile d is used in C language, but it is C used in C++. That's what he Ma'am, in does. C we use like %d, %f, %c, %s, but in C++ we don't use we this. don't use This is what he's saying. we do not use these things in C++. Yeah, because just C is enough, ma'am. C is enough. Just cin is enough, I'm saying. Yes, cin is enough. Like this statement can take input, user input. Anytime. User input can be taken using this like only this statement for the size of the array. Okay, ठीक है. अब मेरे पास साइज तो आ गया है, अब मेरे को साइज ही चाहिए था यूजर से सबसे पहले. अब मान लेते हैं कि हमारे पास साइज आ चुका है. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज फॉर लूप. फॉर लूप हम कहां से कहां तक लेंगे? अब Ma'am, from 0 to s-1. S-1. अब सबसे पहले सबको यही होगा कि s-1 या जो भी लेना है. सबसे पहले मुझे ये बताओ इस एरे का साइज क्या है? 5. Okay. Okay. So, do you know about the indexes or zero base indexing or one base Yes, indexing? Yes, ma'am. Array's index starts from 0. Okay. So basically, the index means the position. Here it is the 0th position. समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम it is not written anywhere कि हम इसको 0 ही लेंगे. We can take this as first also, first index, but उसको हम क्या बोलेंगे?
अगर मैं इस इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम यूजिंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉर एरे, ओके। बट इफ आई एम टेकिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो हम हमेशा फर्स्ट इंडेक्स को जीरो लेंगे एंड सब्सिक्वेंटली वन फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। समझ में आया? ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स इन एरेज। ठीक है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, बट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए हमारे कि एरेज में हम ज्यादातर हमेशा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं फॉर नो कंफ्यूजन, ओके। ठीक है, तो मेरे इस एरे का लास्ट इंडेक्स क्या हुआ? 4 हुआ, फोर्थ इंडेक्स हुआ ना? यस मैम। हाँ, तो अब लास्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये लास्ट इंडेक्स? साइज माइनस वन, है ना, Size minus साइज one. माइनस वन। ओके, सो अब बेसिकली जो भी मैं कोई भी लूप यूज करूंगी, वाइल लूप, बीट वाइल लूप, फॉर लूप और एनी कंडीशन, ठीक है, मैं कभी भी साइज, बस बेसिकली हमें इंडेक्सिंग के ही काम आता है हमेशा। ठीक है, हमें साइज, एरे का साइज हमें केवल दो जगह काम आएगा, एक तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, या एरे विदाउट साइज इज नथिंग। जब तक हम एरे को साइज नहीं देंगे तब तक वो किसी काम की नहीं है, एरर देगा वो, है ना? समझ आ रहा है? तो बेसिकली हम हमेशा जो एरे को यूज करते हैं वो उसकी इंडेक्स से यूज करते हैं हमेशा। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगी किस चीज के लिए? फॉर यूजर इनपुट। अब मैं यूजर से कैसे इनपुट ले सकती हूँ एरे में, है ना? तो यूजर इनपुट के लिए वी विल यूज फॉर लूप, ओके। नॉर्मल फॉर लूप सबको आता होगा। फॉर लूप के लिए मुझे क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, है ना? हम ज्यादातर वो वेरिएबल क्या लेते हैं? आई। आई। और आई को मैं कहां से स्टार्ट करूंगी? जीरो। 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 Why? Because zero is our first index. ठीक है, अगर मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, हम कभी नहीं करेंगे वन बेस्ड इंडेक्स यूज, जीरो ही करेंगे। ठीक है, बट बता रही हूँ, अगर हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो यहाँ जीरो की जगह वन आएगा, ओके। सेमीकोलन, सबको पता है फॉर लूप का सिंटैक्स? यस मैम। यस मैम। Or I less than less minus one. Yeah, so I is less than S. size minus 1, less than or नो मैम, साइज ओनली। ओके, अगर हम साइज यूज करें तो लेस देन आएगा, अगर हम साइज माइनस वन यूज करें तो यहाँ पर इक्वल्स टू भी आएगा। Equal to. ठीक है, हाँ। और हम आई को क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना बार बार। एरे में हम बार बार आई पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, आगे की तरफ तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब यूजर इनपुट का बता दो जरा सिंटेक्स एक बार। सीन नॉर्मल, सीन एरे CN AI means A then square bracket I. ओके, आ गया। अब इस फॉर लूप के बाद सेम ऐसा ही मैं फॉर लूप लिखूंगी टू आउटपुट द एरे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे यूजर ने एक इनपुट एरे दिया ना, उसको मैं खुद देखूं कि उसने क्या इनपुट दिया है। तो क्या चेंज होगा इस वाले फॉर लूप में? बस एक बार ये बताइए। सी इन की जगह सी आउट सी आउट हो जाएगा, और सी इन की जगह। इंसर्शन ऑपरेटर की जगह एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। C out. बस इस वाली पोजीशन पे हमारी ये एक लाइन लिखी जाएगी, ये वाली चीज, है ना? Slash n. यस मैम। ओके, स्लैश एन या फिर एंड एल हम कब यूज करते हैं? जब हमें लाइन ब्रेक करनी हो। अगर मेरा मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे एरे है, अगर मुझे एक ही लाइन में इसका आउटपुट भी मुझे ऐसी चाहिए 1 2 3 4, तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, स्लैश एन या फिर एंड एल, ओके। एंड एल का मतलब क्या होता है? एंड लाइन। अंडरलाइन। ठीक है, तो फिर अगर मुझे पर आउटपुट अपना चाहिए ऐसे वाला, 1 के नीचे 2, फिर 3, फिर 4, है ना? बहुत बार हमें चाहिए होता है भाई, मतलब शायद मुझे ऐसे चाहिए हो कि ब्रेक करनी हो एरे, यहाँ इस 1 के नीचे 2 3 4 लिखना हो, तो हमें हमेशा ये चीजें बेसिक पता होना चाहिए। तो हम कहाँ पे लिखेंगे एंड एल उस चीज के मैम लिए? आफ्टर सी आउट, दैट सेम लाइन ओनली। AI के बाद। आफ्टर AI। A of I के बाद.
हाँ, तो हम इस सेमीकोलन को हटा के यहाँ पे बस एंड एल लिख देंगे, या फिर हम क्या लिखते हैं, डैश एन, स्लैश एन भी लिखते हैं। स्लैश एन। ठीक है, चलो। और मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड और स्लैश मींस कुछ डिफरेंस है? लाइक दे वर्क द सेम, बस वो लाइन को चेंज कर देते हैं। इफ यू वांट टू लाइक हैव एन इनपुट in the next line, so we use this. Both of them do the same work. मतलब एक न्यू लाइन में इंसर्ट करता है, जो उसके आगे जो भी कुछ है तो वो न्यू लाइन में इंसर्ट होएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताती हूँ। we'll do one question. हम एक एरे को कैसे रिवर्स, इफ वी वांट टू जस्ट रिवर्स एन एरे, सबसे लेम अप्रोच, सबसे बिल्कुल, अगर किसी को पता भी ना हो, बस मैं किसी के सामने ये लिख दूं 1 10 4 6 5, मैं किससे पूछूं कि इसको रिवर्स करना है, ये हमारी इनपुट है, इनपुट एरे है, और मुझे आउटपुट अपना चाहिए 5 6 4 10 एंड 1। कैसे लाओगे तुम? इंडेक्सिंग चेंज कर दीजिए। मैम फॉर लूप इंडेक्सिंग चेंजिंग कर देंगे। फ्रॉम लास्ट इंडेक्स I equal to n and I till I greater than 0, then I minus minus. लाइक इंडेक्सिंग तो हमने चेंज कर दी, बट इफ वी की मतलब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, और जिसमें तुमको पूरा ये स्वैप्ड चाहिए, मतलब किसी चीज, मतलब कैसे समझाऊं, जैसे कोई एक प्रॉब्लम है, बट अ पार्ट ऑफ इट नीड्स द रिवर्सिंग ऑफ एन एरे, तो तुम वहां पे थोड़ी ना इंडेक्सिंग को चेंज कर दोगे या एड्रेस को चेंज कर दोगे किसी भी एलोकेशन पे। किसी को स्वैपिंग वाला वो पता है तरीका? यस मैम। कैसे कर सकते हैं? एक स्वैप का फंक्शन हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, फिर हमें दो पॉइंटर वेरिएबल रखने पड़ेंगे उसमें, उसके बाद फिर एक हम टेम्पररी वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम पॉइंटर वेरिएबल का इंडेक्स है वो स्टोर करेंगे। ओके ओके, देन हम उसमें एरे के एलिमेंट्स आगे पीछे करते रहेंगे। अच्छा ठीक है। सो ये मतलब ये वाला अप्रोच ये है कि हम स्वैप कर देंगे बेसिकली, है ना? किस किस चीज को स्वैप करेंगे? कैन यू जस्ट जस्टिफाई योर आंसर कि किस हम कौन से इंडेक्सेस को? अब ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स n माइनस, इसमें 0 जो इंडेक्स है उसको हम i माइनस चलेंगे, फिर 0 और n माइनस i को हम स्वैप करते रहेंगे। ओके, सो इसके लिए हमें कोई लूप यूज करना पड़ेगा ना? वाइल, कोई भी मतलब हम वाइल लूप यूज करेंगे, है ना? तो उसके बाद मुझे उसके लिए 2 पॉइंटर की जरूरत है, बट है ना, स्वैपिंग के लिए। यस मैम। एक पॉइंटर मैं यहाँ पे लूंगी फर्स्ट वाली पोजीशन पे, एक लूंगी लास्ट वाली पोजीशन पे। समझ आ रहा है? जिसको भी समझ नहीं आ रहा, बी फ्रैंक एंड बी इंटरेक्टिव। मैम we can use 2 for loops also ना मैम, for swapping। या वी कैन यूज 2 for loops, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसकी, बताओ? उसका हमेशा हाँ, हमेशा हमें क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो सबके लाइक ह्यूमन ब्रेन इज अ थिंग, वो किसी एक प्रॉब्लम को ना 50 तरीके से या मे बी मोर देन दैट, इनफाइनाइट टाइप से तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर इफ आई गिव यू ऑल ऑफ अस अ प्रॉब्लम, सबके दिमाग में कोई अलग ही सोल्यूशन आएगा उस चीज का, बहुतों का करेगा मतलब कोइंसाइड, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि बस एक ही सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। बट हमेशा इंटरव्यूज में क्या होता है, सबसे पहले हमको एक बहुत लेम सा अप्रोच देना होता है कि ओके वी विल यूज दिस अप्रोच, फिर हमें उसको ऑप्टिमाइज करते जाना होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिफाइनमेंट नहीं, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो हम कोडिंग की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, नॉर्मली ऑप्टिमाइज करने को क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्मल अगर मैं डेली लाइफ में इसको वर्ड का यूज करूं, एफिशिएंट और छोटा रिफाइन सॉल्यूशन को हम रिफाइन। ओके हाँ, सो बेसिकली हम किसी भी चीज को अगर हम बेटर कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिफाइन एज यू जिससे कि हम किसी भी चीज को बेटर कर सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हमने उसको ऑप्टिमाइज्ड कर दिया, उसको ऑप्टिमाइज करा, है ना?
बीट लाइक हम और ऑप्टिमाइज दो तरीके से कर सकते हैं भाई, स्पेस और टाइम एल्गोरिदम में स्पेस और टाइम ही कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, है ना, तो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एरे में, तो हम टाइम को देखते हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग 2 फॉर लूप्स बट वी आर यूजिंग 1 while लूप फॉर दैट एंड वी यूज द स्वैपिंग मेथड कि फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ चला जाए, ये वाला यहाँ चला जाए। अब हम स्वैप करने के लिए क्या यूज करते हैं, कोई बता सकता है? थ्री वेरिएबल अप्रोच बताओ, कुछ भी बताओ। 3 वेरिएबल वेरिएबल लेंगे एक, है ना, एक टेम्प भाई एक वेरिएबल में तो ये स्टोर कर लेंगे, मान लेते हैं हम। टेम्पलेट, स्वैप टेम्पलेट फंक्शन। हाँ, स्वैप टेम्पलेट फंक्शन हम कब STL में यूज कर सकते हैं? अब मैं वही तो समझाना चाह रही हूँ। अब जैसे मेरे को किसी लेम बच्चे को, मतलब किसी भी एक ऐसा इंसान को जिसको STL के बारे में नहीं पता होता, सब जब तक तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं आओगे तुमको लाइक STL के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है हम लोगों को, तो जिसको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इसको हमने एक वेरिएबल में रख लिया, मान लेते हैं इंट a ले लिया, इंट a इज इक्वल्स टू एरे बेसिकली। वेट अ सेकेंड, हमारे एरे का क्या नाम है अभी? कोई भी एक नेम बताओ। इस एरे को क्या नेम है? इस एरे का क्या दें हम? ARR दे देते हैं, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली इस 5 को मैं इस 5 को नहीं, बेसिकली अब मैं अब हमें ये जो पॉइंटर है ये वाला, यहाँ केवल हमें इन दोनों को थोड़ी स्वैप करना है, हमें किन किन और सारे ये और ये भी स्वैप करना है। ये तो इसी जगह रहेगा क्योंकि ये जो हमारी एरे का साइज है वो क्या है, ऑड है ना, तो मिडिल एलिमेंट तो मिडिल में ही रहेगा ना, ये तो ना कहीं और चला जाएगा। आर यू लाइक अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। सो बेसिकली अब मैं चाहती तो मैं यहाँ क्या करूंगी, एक इंटीजर का एक वेरिएबल ले लूंगी a, उसमें सीधा 5 लिख सकती हूँ मैं, या फिर क्या लिख सकती हूँ ARR 0। बट मैं ये क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि मेरी तो ये पोजीशन बार बार हर लूप में चेंज हो रही है ना, हर वाइल लूप में जितनी बार वाइल लूप चलेगा मेरे को हमेशा ARR 0 ही थोड़ी ना चेंज करना है। तो फिर बस 5 और 1 बार बार चेंज होते रहेंगे, एक बार 5 इधर जाएगा, फिर 1 इधर आएगा, फिर 1 उधर जाएगा, फिर 5। समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज करूंगी, पॉइंटर्स। समझ आया? मैं 2 पॉइंटर लूंगी अपने नॉर्मल लेमैन भाषा में, एक लो पॉइंटर लूंगी जो 0th पोजीशन से शुरू होगा और एक हाई पॉइंटर लूंगी जो लास्ट वाले इंडेक्स से शुरू होगा, ठीक है। अब कोई बता सकते हो कि लो और हाई को यूज करके, और तीसरा टेम्प वेरिएबल यूज करना पड़ेगा स्वैप करने के लिए, तो इन तीनों को यूज करके हाउ विल आई डू स्वैपिंग? वाइल लूप के अंदर की लाइन बता दो बस। वाइल लूप के अंदर क्या जो साइज की एरे की उसको से डिवाइड करके देख लेंगे। while वेट अ सेकंड, low will be less than or equal to high. ओके, ये low कंडीशन will हो be गई। less than high. हाँ, ये कंडीशन होगी। हमने ये क्यों लिखी है कंडीशन? क्योंकि हमें टर्मिनेट करना है उस वाइल लूप को, है ना। उस वाइल लूप को कहां तक टर्मिनेट कर सकती हूँ मैं बस मिड तक आ सकती हूँ। मेरा लो का रेंज है ये भाई, लो और हाई यहाँ पर है। एक आइटरेशन के बाद लो और हाई कहाँ आ जाएगा, कोई बताएगा? 1 और 3। 1 और 3 पे, यहाँ पे आ जाएगा लो, यहाँ पे आ जाएगा हाई, ठीक है। इसके नेक्स्ट आइटरेशन में कहाँ आ जाएंगे? दोनों 2 पर आ जाएंगे, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो मेरा ये टर्मिनेशन कंडीशन है अब कि हमेशा मेरा जो लो है वो हमेशा हमेशा छोटा होना चाहिए हाई से, ये वाला पॉइंटर, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है वाइल लूप की। वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है ना हमको, जैसे हम फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। यस मैम। यस मैम। लिख के दिखाते हैं हम वाइल लूप। सबको याद रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भूलना मत कोई भी, ठीक है। अभी मैं वाइल लूप लिख रही हूँ। हेलो। Yes ma'am, one question. We often get function to complete in our coding. Low 1th index, high n minus 2th index. Wait a second, Amit was saying something.
Hello. Yes, ma'am. Yes. I was saying that Mhm. we often get, functional code to complete in our coding competition or coding test. Okay. So we Yes. get array as a name. So how we compute the size of that array? Because ma'am, size of array upon size of int always do not work, ma'am. Like I'm giving if we पहले मैं समझ गई हूँ क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज बेसिकली बहुत बारी इफ यू ऑल आर यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड अगर किसी ने यूज किया है फॉर एन एग्जांपल, तो इन वेरियस क्वेश्चंस वो एक हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे और मेन फंक्शन लिखने को नहीं देंगे. वो क्या करेंगे, फंक्शन फंक्शन एक समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ, एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए दे देंगे. दिस इज योर क्वेश्चन ना, कि हमें एक या फंक्शन मैम को या कंप्लीट करना है जिसका नाम फंक्शन ही है मान लेते हैं, ठीक है. उसके अंदर उसने एक एरे पास की हुई है ARR इंट ARR, बस इतना दिया हुआ है और उसके अंदर हमें रिवर्स करके देनी है इस एरे को और इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है. ऐसा किसी ने देखा है प्लेटफॉर्म्स पे? बस Yes, इसी ma'am. फंक्शन को कंप्लीट करना है Yes, ma'am. है ना. तो Ma'am, with vector ही होता है. या सो वेक्टर हो सकता है बट उन्होंने इंटीजर ही दिया हुआ है और किसी को STL नहीं आता तो फिर क्या करेंगे. नहीं मैम, वो फंक्शन के पहले वेक्टर भी लिखा हुआ होता है. हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप तो होगा जो भी, भाई जो रिटर्न टाइप होगा ना, रिटर्न टाइप. मुझे इस फंक्शन को में क्या रिटर्न करना है, मुझे अगर इंटीजर एरे ही रिटर्न करनी है तो यहाँ पे इंट होएगा. समझ आ रहा है? हमेशा फंक्शन का सिंटैक्स आता है सबको, है ना. फंक्शन का सिंटैक्स तो आता होगा. Yes, ma'am. yes ma'am, that's clear. या सो अमित का क्वेश्चन ये था, अगर यहाँ पे हमें एरे दे दी, साइज नहीं दिया, तो हाउ डू वी फाइंड द साइज ऑफ दिस एरे विदाउट यूजिंग STL? कौन बताएगा? मैम आप क्वेश्चन रिपीट करिए अगेन. Like the array is given here, the given array is ARR और मुझे इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसका साइज चाहिए बट मुझे STL लाइब्रेरी यूज नहीं करनी आती, तो मैं इसका साइज कैसे निकालूंगी? मैम साइज ऑफ फंक्शन मैम वो मेन में पहले n हमें पास करना पड़ेगा. मैम ARR is starting of address of array num. मैम दो तीन तरीके, साइज ऑफ से निकाल कर फिर जो जिस टाइप की वो एरे है उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे. या फिर कोई ऐसा तरीका But हो does जाएगा that कि work, जब ma'am? नेक्स्ट करते जाएंगे हम लोग, जब तक कोई एरर नहीं आ जाती उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और वहां पर स्टॉप कर देंगे. मैम फंक्शन में तो अरे वो पॉइंटर नहीं हो जाएगा साइज उसका? नहीं, अगर मैंने लाइक उसको क्या वैल्यू लाइक पास बाय रेफरेंस नहीं किया, पास बाय वैल्यू किया है. पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस पता है तुमको? अगर मैं पास बाय रेफरेंस करूंगी तब पॉइंटर बनेगा ना ये. अगर मैंने पास बाय वैल्यू किया, एज इट इज एरे यहाँ क्या आ गई, तो उसका साइज कैसे निकालूंगी? यूजिंग नॉर्मल फॉर लूप भी निकाल सकते Yes, हैं ना. ma'am. We can do a thing. We can take a for loop and then in the loop we can take a count variable and increase the count each time. And in the for loop condition we can take condition till the element will not equals to 0. Okay. Ma'am, because at the end of the array, if we take the 100 size and put only 5 size, then the rest element will be filled by 0. So we'll take the condition till the element will not equal to 0. Okay. And inside loop we can increment the count each time for each element. And by doing this, we can calculate the size of the array by the count variable. ओके. सो अब जैसे इसने बताया हम काउंट वेरिएबल को यूज करके कर सकते हैं. समझ आया सबको ये चीज? हम फॉर लूप चलाएंगे exceed the size बट of फॉर लूप array. की If we exceed the size of array, then we can get a garbage value, ma'am. your voice is like lagging. Ma'am, I am saying if you go to the element based outer bound, or like after we exceed the array size, then we can go to the random address and there we can get a garbage value. How do we know that we understood that we get 0 only?
सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे ना, फॉर लूप तो सबसे पहले फॉर लूप के लिए तो एक कंडीशन तुम्हें चाहिए ही कि लाइक सबसे पहले इफ वी से तो एसटीएल को आपने कभी यूज किया है या फिर सीखा है कभी एसटीएल? Yeah, No, ma'am. I know full HTML. ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे अमित ने अभी बोला, हमेशा इसका ऑब्वियसली सोल्यूशन है हर चीज का, बट मैं ये कह रही हूँ इन छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज को ही सॉल्व करने के लिए हम एसटीएल को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर एसटीएल आती होती ना, हम केवल एक चीज लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे बताओ सी प्लस प्लस का एसटीएल में साइज निकालने के लिए? साइज ऑफ फंक्शन यूज कर लेंगे सीधा। साइज ऑफ तो ऑपरेटर है ना। साइज ऑफ नहीं, साइज Dot लाइक size. Dot size. डॉट साइज यूज, डॉट लेंथ, डॉट लेंथ एंड डॉट लेंथ। Length अच्छा, is used in वेरी string. वो स्ट्रिंग का है। वेरी नाइस क्वेश्चन। नॉट ओनली स्ट्रिंग, एरे में भी काम करता है हाँ, डॉट एरे लेंथ। में भी एग्जैक्टली एरे में भी काम करता है। डॉट लेंथ और डॉट साइज में क्या फर्क है? हाँ वही बात है। Ma'am, it's the capacity and the size. कैपेसिटी एंड साइज मींस दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो रिटर्न करेंगे। लाइक बोथ ऑफ देम विल रिटर्न द लाइक द लेंथ और द साइज। साइज क्या है हमारी एरे का क्या होता है साइज? एसटीएल फंक्शन साइज है ना। फंक्शन होता है और लेंथ एट्रीब्यूट होता है। लेंथ क्या? Length is attribute of an array. ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एसटीएल में। जैसे अगर मैं डॉट साइज यूज करूं या डॉट लेंथ, स्ट्रिंग में क्या यूज होता है? वो डॉट लेंथ फंक्शन होता है। डॉट लेंथ। ओके, सो ये बताओ कि हम स्ट्रिंग अब अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है तो अगर किसी को एसटीएल आता होगा तो वो कौन सा फंक्शन यूज करेगा उसको डिक्लेयर करने के लिए? स्ट्रिंग क्लास यूज कर लेंगे। हाँ, स्ट्रिंग, डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज करेंगे। बट जिसको एसटीएल नहीं आता होगा वो क्या यूज करेगा? कैरेक्टर एरे यूज करेगा ना। या कैरेक्टर एरे यूज कर सकते। हाँ, और कैरेक्टर एरे यूज करने के हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है बाद में अगर हम किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करेंगे। पता है एसटीएल इज समथिंग शॉर्टकट पाइथन की होगी बहुत लोगों ने तुम में से। कंटेनर है सर, एसटीएल कंटेनर। बेसिकली जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम पाइथन में कितनी सारी चीजें यूज करते हैं तो डायरेक्ट होती हैं वो हमारी, है ना। हमें कोई फंक्शन यूज करना है किसी चीज का, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा लेंथ निकालनी है और कुछ भी शॉर्टकट है बेसिकली, है ना। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि एसटीएल तो हम नहीं पढ़ेंगे डीएसए में बेसिकली, पर एसटीएल मैं सबको ऐसे रेकमेंड करूंगी कि सबको ना पता होने चाहिए। बेसिक फंक्शंस पता रखो, मतलब इफ यू आर कोडिंग बेसिक कोडिंग भी तुम कर रहे हो तो उसमें एसटीएल के फंक्शंस यूज करो अभी से, है ना। बाद में जब Actually, ma'am, the problem was that in Amazon coding round, okay, I got 2 questions of string, but okay, in one question the argument or parameter was passed like character array. It was not a string, and I was using recursion to solve that question. So you can make a string out of that character array, na, for your own yes, like we can create our own character array first, extract yes, each character, create an array and then work on it. Exactly, हमें क्वेश्चन को अपनी तरह मोल्ड करना है ना, हमें कैसे सॉल्व करना है उसकी But ma'am, कॉम्प्लेक्सिटी। how we can do that if you are using recursion? Because each time I have to pass an a substring of that string or that character array. सबसे पहले वो जो अगर जावा रहेगा तो ये इजी है मैम। लाइक सी मेरे को क्वेश्चन पूरा नहीं पता है, बट मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं क्या करूंगी, जो मुझे इनपुट कैरेक्टर एरे दी हुई है ना, मैं पहले उसको एक स्ट्रिंग बना लूंगी। समझ आ रहा है? मतलब स्ट्रिंग में जैसे हम ऐड करते हैं उसको स्ट्रिंग बना लूंगी। जैसे अगर कोई भी एप्पल मुझे कैरेक्टर एरे दिया उसको मैं स्ट्रिंग बनाऊंगी और स्ट्रिंग पे यूज करूंगी अपने सारे फंक्शंस एसटीएल के। Do you understand what I'm saying? I don't know the whole question you are talking about, but मैं उसको STL से यूज करती फिर बाद में।
Okay, ma'am, that's fine. But in this question, how we calculate like size of array? Like at this point of time, I can just think of size, thing of STL, like because I use a lot of STL. मैं बताऊंगी कल. We'll meet, so I'll tell you tomorrow. Okay, ma'am. Actually, I know that size of whole array upon size of integer will give the answer. But in some compiler, like I am Many using times. MinGW, I am using MinGW with Sublime, but it's Okay, not okay. working. Ma'am. हेलो Hello. यस मैम, अगर जावा नहीं तो पूरा सी प्लस प्लस का बात चल रहा है, तो एक ही बात कर, एक फंक्शन है विद स्ट्रिंग क्लास दैट इज ऐड, एक लूप दौड़ा देना है और उसके बाद फिर ऐड से हर एक कैरेक्टर जो एक्सट्रैक्ट करते जाना है. We are not talking about string. हम फिर से वापस array पे आ गए, integer array पे. हाँ तो मैं अच्छा या ठीक है. तो अभी हम जो साइज पे कूद गए हैं, अब पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देन वील रैप अप फास्टली. ओके ओके मैम, ओके, नो प्रॉब्लम. हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, कोई बता सकता है? साइज और लेंथ. रिवर्स. रिवर्स एंड एरे. रिवर्स एंड एरे. तो हमारी हाँ, तो इसके अंदर की कंडीशन क्या थी हमारी व्हाइल लूप के अंदर, जल्दी से बता दो. The low pointer should be lesser than the high pointer. Low is low should be less than than high. ये थी हमारी कंडीशन. लेस देन हाई इक्वल टू में हमें तो वो टर्मिनेट हो जाएगा ना. यस मैम. हमारा मिड एलिमेंट है, समझ आया? यस मैम, यस मैम. यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब तो मुझे टर्मिनेट करना है अपना व्हाइल लूप, है ना? यस मैम. तो अब मैं अगर मुझे सी अब दो वही वाली चीज आ गई, दो पार्ट आ गए यहाँ पे. यूजिंग एसटीएल में सीधा स्वैप फंक्शन यूज करूंगी या रिवर्स फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ. डू यू नो ना एसटीएल में सीधा रिवर्स फंक्शन भी होता है. स्वैप पता नहीं. हाँ स्वैप, ठीक है. तो बेसिकली एसटीएल छोड़ ही देते हैं, एसटीएल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है. तो हम क्या 3 वेरिएबल यूज करके कर रहे थे, तो कैसे करेंगे बताओ? लो और हाई है अभी मेरे पास, और टेम्प है. टेम्प ले लेती हूँ एक int Yes, temp. we can use the kitchen rule to solve this question, to swap the variable. कर सकते हैं ना. टेम्प इज इक्वल्स टू क्या लिखूं बताओ? A of low, array of low, sorry. ARR लो, ठीक है. फिर ARR low equal to ARR high. And then ARR high equals to temp. Temp. यही है. Yes. It is high, please. तो अब इसके बाद क्या करना था? स्वैपिंग तो हमने कर दी. अब इसको व्हाइल लूप को आगे करने के लिए क्या करूं मैं इसमें? लो प्लस प्लस हाई माइनस माइनस. एग्जैक्टली. बहुत सारे बच्चे यहीं पे भूल ही जाते हैं कि हमें वो फिर वो इनफाइनाइट लूप चलने लगता है. ठीक है, तो ये चीजें मत भूलना कि टर्मिनेशन कंडीशन बहुत जरूरी होती है हर चीज में. डीपी अगर मतलब आगे जाके तुम लोग पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यू स्टडी, तो यू विल सी कि टर्मिनेशन कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे बता रही हूं. इसमें ये नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल ले लें आई जो 0 से हो, और एक हम लोग मिडिल वेरिएबल निकाल लें लो और हाई से प्लस कर डिवाइड कर, तो 2-3 ऑपरेशन हम लोग के कम हो जाएंगे. कैसे कैसे? जैसे लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग को मिडिल पॉइंट पता चल जाएगा. हाँ. और आई स्मॉलर देन मिडिल पॉइंट इक्वल टू मिडिल पॉइंट कर देंगे. आई स्मॉलर देन मिडिल पॉइंट मैम, मतलब मिडिल पॉइंट निकाल देंगे. मिडिल पॉइंट निकल गया, मान लेते हैं हम, ये हमारा निकल गया मिड पॉइंट. यस मैम. तो हम यहाँ जो फर्स्ट वेरिएबल है 0th पोजीशन, हाँ ये जो साइज ऑफ एरे उससे ये माइनस कर देंगे 0, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला सीधे स्वैप कर देंगे. जो लो प्लस प्लस हाई प्लस प्लस ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, वो ये वाइल में आएगा ही. we have to do high minus minus, no? High minus minus, because index of high will be decrement each time. It is high minus minus. Yeah. Yes ma'am, what Hitesh was saying.
हम ये समझ मतलब फर्स्ट पोजीशन है और हम लोग को लास्ट पोजीशन तो मालूम ही है, तो यहाँ पर जो हम लोग लो और हाई लिख रहे हैं इसमें हम लोग हाई माइनस मतलब जो ith पोजीशन होगी वो लिख देंगे, तो 2-3 ऑपरेशन कम हो जाएंगे। मैंने मान दी ये वाली और ये वाली पोजीशन तुम लोगों की स्वैप होगी, उसके बाद क्या करोगे? उस आई को तो बढ़ाओगे ना यहाँ पर। हम आई एक बढ़ेगा और लास्ट पोजीशन से वो माइनस कर देंगे, तो वो भी एक कम हो जाएगा, ये भी एक कम हो जाएगा। तो क्या सेम चीज हम यहाँ नहीं कर रहे? मैम यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर लो प्लस हाई बार बार तो हो रहा है, वहां पर सिर्फ आई प्लस प्लस होगा, एक छोटा सा ऑपरेशन प्लस माइनस का बढ़ेगा। यहाँ पर ये लो इज इक्वल टू लो प्लस 1 स्टोर भी हो रहा है। तुमने मिड निकाल लिया। यस मैम। ठीक है, मिड निकालने के बाद भी तो तुम्हें लूप चलाना पड़ेगा ना आगे पीछे लूप तो जाने चलाना के लिए। पड़ेगा, बस लूप के अंदर एक ऑपरेशन कम होगा बस। सी एक ऑपरेशन से कुछ नहीं, बी को ऑफ 1 टाइम तुमने कम कर दिया, कांस्टेंट टाइम कम किया है ना। यस मैम। क्या फर्क पड़ता है यार उससे? तुम्हारा अगर कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं। एंड टाइम का तो कम होगा ना, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मल्टीप्लाई भी तो होगा 1। क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं। कांस्टेंट अगर मैं ये 1000 टाइम्स भी चला दूं ना, दिस इज इक्वल, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट टाइम। समझ आ रहा है? यस मैम। ऑर्डर ऑफ टाइम मैटर्स हियर ना। हाँ, ऑर्डर ऑफ टाइम मैटर्स। तो बेसिकली हम कांस्टेंट टाइम ही तो ले रहे हैं यार, और तुम कितना ही कर लो तुम्हें आइटरेट करना ही पड़ेगा, आगे तो जाओगे ही। अब स्वैप, अब इस वाली पोजीशन को इससे basically by saying we are till mid and each time we take the index of high and subtract the first low index. That's the same thing, nothing difference. या बेसिकली। और मेरे दिमाग में एक और अप्रोच क्या आया है, इसने बोला मिड निकाल लेते हैं, हमने मिड निकाल लिया है ना। अब हम अपना लो और हाई पता है कहाँ रख सकते हैं? वैसे ठीक ही है, कुछ और नेवर माइंड, कुछ और बोल रही थी। तो समझ आ गया ये कैसे करना है, मतलब ये वाला क्वेश्चन रिवर्स एन एरे? यस मैम। यस मैम। पक्का समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब एक क्वेश्चन तुमने सुना होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अगर हम बेसिक क्वेश्चन ऑफ एरेज कर रहे हैं। बेसिक में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है लीडर्स इन एन एरे। किसी को पता है लीडर्स क्या मतलब, एक एरे में लीडर्स का क्या मतलब है? नो मैम। नो आइडिया मैम। उसके पहले वाले एलिमेंट उससे छोटे हैं और उसके बाद वाले उससे बड़े चाहिए। ये स्ट्रिक्ट लीडर हो गया। बट अगर मैं नॉर्मल मतलब अगर एक बहुत सिंपल सा, इससे भी सिंपल क्वेश्चन लाइक मैं ले लेती हूँ, एक एरे। आई नो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है बट आई विल टेक जस्ट 2 मिनट, ओके, 2 more minutes। ये है मेरे पास एरे, ठीक है। इसमें कौन कौन से लीडर्स होंगे बता दो मुझे। लीडर्स की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ बहुत सिंपल सा, जिसके आगे, लीडर इज बेसिकली जिसके आगे उससे बड़ा एलिमेंट कोई ना हो। तो कौन कौन से हो गए इसमें? पीछे का नहीं देख रहे हम, बस आगे देख रहे हैं, उसके आगे कोई उससे ग्रेटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैम एक तो 20 है। 20 15 and 8 and 5। जिसके आगे उससे बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आगे मतलब पूरा आगे मींस टुवर्ड्स द लाइक जिस तरफ हमने लिखे हुए जिस ऑर्डर में सिंगल इंडेक्स या पूरा एरे। मैम 5 and 20 पूरे एरे में, 5 and 20 पूरे एरे में। हाँ तो बस 5 and 20 होगा मैम। 5, 20 and 8 मैम। और 3 से आगे है उससे बड़ा कोई? नो। 8 है ना। 3, 8, 15, 20। I am thinking towards this। ये हमारी डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज दिस। That's right side you are saying मैम। या हम पीछे की तरफ क्यों? बेसिकली यही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए। 20 मैं बता देती हूँ, 15 सबमिट कर रहे हो। 20 है, 15 है, 15 से आगे कोई इसका बड़ा है? 8 है और 3 है, है ना। these 4 are the leaders। तो कोई एक बहुत सिंपल सी नेव अप्रोच आ रही है दिमाग में कि कैसे निकाल सकते हैं हम ये?
मतलब व्हाट, एक तो देखो 2 फॉर लूप वाली तो आई गई हो, 1 फॉर लूप वाली तो आई गई होगी। जे आएगा दूसरा वाला जो लूप आएगा +1 i +1 से मैम, हाँ। फिर इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ i इज ग्रेटर देन j। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, अगर मुझे 5 चेक करना है कि ये लीडर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इससे आगे मतलब इस पोजीशन से एक लूप स्टार्ट करूंगी, इस वाली पोजीशन से, और देखती जाऊंगी क्या इससे बड़ा कोई एलिमेंट मिल गया, अगर मिल गया तो वो वही टर्मिनेट हो जाएगा लूप, और फिर मैं 3 पे आ जाऊंगी। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग? यस मैम। अब इससे कोई बेटर अप्रोच कोई सोच सकता है? मैम 2 लूप लगेंगे। फर्स्ट में हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर वो तो बता जाएंगे दिया था। n-2 तक, फिर सेकंड में हम सेकंड लूप में j। ओके मैम लिस्ट यूज करें तब चलेगा, तब हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लूप में हम लोग चल रहे हैं, पहले 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड से चेक करें, अगर फर्स्ट वाले can we use मतलब can we do this solution using only in big O of n? यस मैम हो जाएगा, मैं बिग ओ एन ही में बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मैम फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकंड से चेक करेंगे, अगर सेकंड वाले एलिमेंट से वो मतलब कम हुआ फर्स्ट वाला एलिमेंट, अगर सेकंड वाले एलिमेंट से मतलब ज्यादा हुआ तो स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट से चेक करेंगे, अगर दूसरा वाला ज्यादा हुआ तो उसको एरे में डाल देंगे, फिर आगे चेक करेंगे कम हुआ तो उसको भी एरे में डाल देंगे, अगर उससे कम हुआ तो उसको एरे में डालते रहेंगे, अगर अपोजिट हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है तो पूरी एरे को खाली कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उसमें ऐड कर देंगे। लाइक फिर से डालने में भी तो तुम्हें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना। वो मैम उसको रिमूव कर देंगे ना मैम, लिंक लिस्ट यूज करेंगे ना, उसको पूरा रिमूव कर देंगे ना, वहीं पर उसको एम्प्टी कर देंगे पूरी। ठीक है, वी यूज्ड अनदर डेटा स्ट्रक्चर्स, बट आई एम सेइंग कि अगर मतलब बिल्कुल ही मैं ये एक हिंट देती हूँ, हम लास्ट से कोई पॉइंटर ले लें तो कुछ हो सकता है? हम ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर उसको उसके आगे वाला उससे छोटा है पर उसके आगे वाला उससे बड़ा है तो वो डाल दें, तो उसके जो उसके बाद वाला है सेकंड लास्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं सबको, कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो तो हमेशा लीडर होगा, ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। हाँ yes, तो ma'am. मैं क्या करूंगी yes, ना, आउटपुट के लिए एक एरे बना लूंगी, न्यू एरे, मतलब आंसर एरे बना लूंगी मैं अपनी, है ना, और उसका साइज ये इसी का साइज रख दूंगी, जो मैं जैसे इसका साइज हमारे पास 6 है तो इससे एक आंसर एरे में डिक्लेयर कर दूंगी, और उसमें मैं इनपुट देती जाऊंगी। तो सबसे पहला इनपुट तो मेरा 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? वो तो लास्ट इंडेक्स है, वो तो आना ही आना है, दैट इज लीडर फॉर श्योर, है ना, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो अब मैं जो मेरा पॉइंटर यहाँ था, अब मैं उसे एक स्टेप पीछे अगर लेके जाऊं और मैं ये देखूं क्या मेरा 8 इज ग्रेटर देन 3, बड़ा है 3 से? यस मैम। तो फिर क्या ये एक लीडर हुआ कि नहीं हुआ? यस हाँ, तो फिर इस लीडर को भी मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी, क्योंकि 6 है ना मेरा इंडेक्स, तो मैं अभी 6 तक इंसर्ट कर सकती हूँ एरे में उसके स्टोरेज के हिसाब से, है ना। फिर मैं और पीछे जाऊंगी, है ना, तो अभी मेरा जो टेम्प है वो है 8। अभी यहाँ पे मैं एक टेम्प नहीं, मैक्स एक वेरिएबल लेके चल रही हूँ। हाँ, मैक्स वेरिएबल, अभी तक का मैक्सिमम वेरिएबल क्या है? सबसे पहले मैक्सिमम वेरिएबल 3 था, उसको कट होके 8 हुआ अभी, है ना। अब मैं 15 पे आ गई। अब मैं ये चेक करूंगी क्या 15 मेरा मैक्स वेरिएबल से बड़ा है, यस और नो? यस यस मैम। यस बड़ा है, तो क्या वो लीडर हुआ? क्योंकि अभी Yes, तक ma'am. के मैक्स से भी बड़ा है, वो जो अभी तक का मैक्सिमम है ना उससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? वो लीडर हुआ, है ना, एंड सो ऑन। समझ आ गया क्या लॉजिक है? यस मैम। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को प्लीज करके आना, और अगर तुम समझ गए तो इसको जरूर इम्प्लीमेंट कर लेना एक बार। और ठीक है? मैम एक और प्रॉब्लम है। हेलो। यस मैम, हाँ एक बोलो। और प्रॉब्लम मैं पूछ रहा था। अक्सर मैम क्वेश्चन आते हैं सब एरे पे, हाँ, सब एरेज पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैम उसमें क्या है कि हर बार सब एरे अगर जनरेट करना पड़ता है तो मैं बार बार यूज कर देता हूँ।
और वहाँ पे क्या क्या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब का यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सवेरे के लिए योर सारे के वॉइस सारे इज सवेरे। नॉट क्लियर अमित। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। मतलब यू यूज बिग ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरी टाइम। सारे सब एवरेज करने के लिए तो डिस्कस करें। अभी तो देखो आज टाइम नहीं है, विल डिस्कस इट टुमारो के सवेरे के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बट मैं मैम एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो शशांक, मैम बोलो। हम जावा कर रहे हैं तो ये स्टिल करना पड़ेगा क्या? मतलब जावा कलेक्शन लाइब्रेरी करेंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लाइक आई यूज सी प्लस प्लस इसलिए मैं एसटीएल बता रही थी। दैट इज व्हाई आई डोंट नो मोर अबाउट जावा राइट नाउ, बट आपको पता होगा कि उसमें मैं कैसे हम तुम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हो, तो यू शुड लर्न दैट। बट लाइब्रेरी सीखना जरूरी है क्या? मतलब जरूरी ओनली कुछ जावा जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट जब भी हम मान लेते हैं, मेरा कोडिंग राउंड हुआ है अमेजोन का, है ना, समझना इस चीज को। मेरा 1.5 आवर का कोडिंग राउंड है, उसमें मुझे 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन करने हैं, और वो इजी नहीं होते हैं फॉर श्योर, मीडियम लेवल होते हैं। इजी भी मिलेगा बट इजी में भी मीडियम इजी होता है हमेशा, है ना। उसमें तुम अगर प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करोगे तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, या फिर पूरा कोड लिखने में कम टाइम लगेगा, प्रीडिफाइंड फंक्शन, है ना। तो हमें उसी, अगर मेरा कोडिंग राउंड ही नहीं क्लियर हुआ तो मैं इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचूंगी, है ना। समझ आ रहा है ये चीज? या मैम। हाँ तो मैं फॉर योर इजीनेस, अगर आप कंफर्टेबल हो सीधा पूरा कोड लिखने में, तो देयर इज नथिंग न्यू कि तुम्हें वो चीजें सीखनी जरूरी है या नहीं। दैट्स फॉर योर इजीनेस। बट मैम इंटरव्यूअर लाइब्रेरी एक्सेप्ट करेगा ना? इंटरव्यू बहुत बार लाइब्रेरी एक्सेप्ट करते हैं, और बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो तुम्हारा वो देखना चाहते हैं, मान लो अगर तुमने कोई लाइब्रेरी यूज करना सीख लिया, तो क्या तुम बेसिक अप्रोच भूल जाओगे क्या? ऐसे मतलब अगर कोई तुमसे सामने से पूछ ले, नहीं हम नॉर्मल तो अप्रोच बता सकते हैं, समझ रहे हो। तो फिर अगर इंटरव्यूअर ये बोले कि तुम मुझे ऐसा करो कि कोई ऐसे कुछ भी ऐसे सॉर्ट का फंक्शन ना यूज करके कोई सॉर्टिंग यूज कर दो, तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि हम सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ते हैं एग्जैक्ट। हाँ या मैम या। हाँ तो बस उस टाइम के लिए कर दो, मतलब अगर ही इज आस्किंग अबाउट दैट। हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम आप बता सकते हैं? You can write in chat box, Amit. I am not able to. हो रहा है। क्या चीज? एक्सक्यूज मैम, बोलो। मैम आप बता सकते हैं डीआरडीओ में इंटर्नशिप मतलब कैसे मिलता है, प्रोसेस? Okay, so should I share this tomorrow in the Yes, ma'am, starting of, sure. या फिर अभी शेयर करूं, बताओ। मैम आप अगर कन्वीनियंट हो आपके अकॉर्डिंग। ओके सो लाइक अभी बहुत कम बच्चे बचे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कर, बट अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यस यस अमित, वी कैन डिस्कस सवेरे प्रॉब्लम टुमारो। सो अभी डीआरडीओ में ये है बेसिकली कि पूरा एक प्रोसेस चलता है, लाइक इफ यू वांट एन इंटर्नशिप, लाइक समर होता है, विंटर होता है, वहाँ पे 2 सीजन होते हैं मेन इंटर्न के, ठीक है। तो इफ यू वांट एन इंटर्नशिप इन विंटर्स, तो आपको प्रायर 6 मंथ्स उनको लाइक बहुत सारे वो लैब्स होते हैं। आपको लैब्स पता है, डीआरडीओ इज डिवाइडेड इनटू लैब। यस मैम। लैब्स, अब तुम्हारी कौन सी स्ट्रीम है, आर यू फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और ईसीई और समथिंग, तो यू विल बी चूजिंग लैब्स अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। तो फिर जिस भी लैब का, और हर लैब का एक चेयरपर्सन होता है या फिर एक डायरेक्टर होता है, समझ रहे हो, उसको हमें एक मेल फॉर्मेशन में एप्लीकेशन देनी होती है, समझ रहे हो। यस मैम।
I mean, why कोई do you want? particular year है मैम, means like second year, first year, third year, कोई No, there is no particular year about that. You can do this any year. अगर तुम सेकेंड ईयर में भी हो, फर्स्ट ईयर में भी हो तो, बट ये होता है कि तुम्हें थोड़ा प्रायर लेके चलना पड़ता है. यू कैन नॉट लाइक एक्सपेक्ट कि अगर मैं अभी करूंगी तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा मेरे पास. समझ रहे हो? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आई विल शेयर इट टुमारो विद यू. ओके या बेसिकली. तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है. ओके अमित, थैंक यू फॉर शेयरिंग. या सो और एक और चीज I want to share from you. If we like today was the first day, अगर हम 7 days तक we can just stretch arrays to like infinite days. हम 7 days तक भी arrays पढ़ सकते हैं, but we want कि हम एक हर टॉपिक को थोड़ा ऊपर से देख लें. और समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? yes or no में जवाब दे दो सब. Yes, ma'am. If we just keep discussing about arrays or something, then we will not be able to touch trees at the end. Okay, so we will try कि हम सब कुछ short में रखें. ठीक है? So we will meet tomorrow again and we'll study further. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. 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 Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.